Good morning students. Welcome to my YouTube channel Patna Maths Academy. स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में अगेन मीन्स पुनः हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो क्वेश्चन नंबर 8. Okay, so question number 8 what tells an AP consists of 50 terms of which third term is 12 and last term is 106. Find the 29th term of given AP. Understood? So let A be the first term and D be the common difference. Okay, A first term and D common difference. Okay, so third term, first of all n equal to 50, it is given, consists 50 terms. Third term means a plus 2d equal to 12 and an equal to 106. Okay, it is given. So first of all we try to find out A and D. Okay, so now n is given and an is also given. Okay, so first of all now a plus 2d equal to 12, so then implies a equal to 12 minus 2d. Mark the equation number 1. And an equal to 106, so a plus n minus 1, this is 1 into d equal to 106. a को हम लोग a ही छोड़ देते हैं कि a के जगह पर पुट कर दीजिए, तो 12 माइनस 2d इंटू प्लस n minus 1 means 50 minus 1 into d equal to 106. So then implies 12 minus 2d and this will be 49d plus 49d equal to 106. So then implies 47d equal to 106 minus 12. So 47d equal to 94. So then implies d equal to 94 by 47. So then implies d equal to 2. So therefore a equal to 12 minus 2d. So 12 minus 2 into 2 equal to 12 minus 4 equal to 8. Any problem? So therefore now we have to find A29. So therefore A29, which term? 29th term equal to A plus 28D. So A equal to 8 plus 28 into D equal to 2. So 8 plus 56 equal to 64. So therefore 29th term is 64. This is your required answer. Understood about this? Okay. So now we try to solve question number 9. Okay. So 9 what tells if the third and ninth term, so again let
A be the first term and D be the common difference. Okay. So therefore third and ninth term of AP. So according to question, A plus 2D equal to 4 and A plus 9D means 8D minus 8. Okay. When subtract equation 1 from equation 2 from equation 1, which term is 0? Okay, so minus plus A cancel, so 2D minus 8D equal to minus 60 equal to 8 4 12, so D equal to 12 by minus 6, so then implies D equal to minus 2. So therefore A equal to 4 minus 2D, so 4 minus 2 into minus 2, so 4 plus 4 equal to 8. And now which term of AP is 0? अब now AN equal to 0. So then implies A plus N minus 1 into D equal to 0. A equal to 8 plus N minus 1 into D equal to minus 2 equal to 0. So then implies 8 minus 2n plus 2 equal to 0. So 8 are 2, 10 minus 2n equal to 0. So then implies 10 equal to 2n. So then implies n equal to 10 by 2, 5. Okay, so this is equal to 5. So hence यहाँ पर लिख देते हैं, hence fifth term is 0. Okay, hence fifth term is 0. Understood? So ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9. ओके, तो अब हम लोग 10 की तरफ बढ़ेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं कि 10 क्या कहता है. तो 10 में देख लो, द 17th term of an AP exceed its 10th term by 7. Find the common difference. Okay, so first of all let the first term be A and common difference be D. Okay, तो 17th term of AP exceeds it. So A17 equal to A plus 16D and A10 equal to A plus 9D. ये हमारा इक्वेशन हुआ. अब 17 टर्म एक्सीड बाई 7. सो नाउ A17 minus A10 equal to 7. So then implies A plus 16D minus A plus 10D equal to 7. So A plus 16D minus A minus 10D equal to 7. A to A cancel, 16D minus A कैंसिल. सॉरी, एक चीज़ यहाँ पर हम लोग मिस्टेक कर गए. A प्लस 9D यहाँ लिखना है तो हमने क्या लिख दिया, 10D लिख दिया. A प्लस 9D है. ओके, तो यहाँ पर 9D होगा ना कि 10D होगा. तो 16 माइनस 7D इक्वल टू 7. सो D इक्वल टू
7/7. So then imply D equal to 1. Hence the value of D is 1. ओके, यानी मीन्स क्या हुआ कि कॉमन डिफरेंस हमारा 1 आया. एनी प्रॉब्लम? तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 11. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग चलते हैं. विच टर्म ऑफ एपी 3. अब देखो एपी दिया हुआ है, ये हमारा 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट ये दिया हुआ है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. कह रहा है कि which term of this AP will be 134 more than its 54 terms. Understood? So क्वेश्चन क्या कहता है कि A54 पहले हम लोग देख लेते हैं, तो A प्लस 53D होगा. ओके, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब कहता है कि AN 132 मोर देन इतना, मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 132 प्लस A54 इक्वल टू AN. एक चीज यहां पर मैंने ये कर दिया कि यहां पर ये चीज जरूर लिख लीजिए कि A इक्वल टू 3 एंड D इक्वल टू 15 माइनस 3 इक्वल टू 12. इसको पहले यहां लिख लेना चाहिए था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर मैंने लिख लिया. सो देन इंप्लाइज 132 प्लस A प्लस 53D इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. अब N का वैल्यू निकाल लेना है, तो देखो A दोनों तरफ से प्लस में है, तो A से A तो हमारा कैंसिल ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, D का वैल्यू हमें मालूम है, तो D पुट कर देंगे. सो देन इंप्लाइज 132 प्लस 53 इंटू D हमारा 12 है, तो यहाँ 12 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 12. देन इंप्लाइज, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि 53 को 12 से करेंगे, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 3 1 जा 5 1 जा 6, 3 6, और इसमें 132 को ऐड भी करेंगे, यानी 132 प्लस 636 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 12. सो देन इम्प्लाई, अब इसको ऐड कर लेते हैं 132 को, तो 6 2 8 6 7 68 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 12. अब 12 से चाहोगे तो इसको कैंसिल कर सकते हो, आराम से हो जाएगा. 12 6 टाइम्स में 72, अब 4 टाइम्स में 48. सो देन इम्प्लाइज 64 इक्वल टू N माइनस 1, यहाँ कर देते हैं. सो देन इम्प्लाइज N इक्वल टू 64 प्लस 1, देन इम्प्लाइज N इक्वल टू 65. हैंस 65th टर्म, हैंस ऐसे कर देते हैं कि द रिक्वायर्ड टर्म इज required term is 65th, या 65th is the 65, okay, is the required term. Any problem? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था.
तो 11 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग आते हैं 12 की तरह। तो 12 क्वेश्चन क्या कहता है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म? ओके, नो प्रॉब्लम। तो लेट द फर्स्ट term of two APs are A1 and A2 and A2 respectively, and their common difference इज डी। अब देखो यहां क्या कर रहा है कि दोनों का फर्स्ट टर्म अलग अलग है बट कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो मैंने कॉमन डिफरेंस दोनों का डी ले लिया। अब देखो क्या होता है, ए 100, ओके, 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, फर्स्ट और सेकेंड में हमने बांट दिया। तो ए प्लस 99D और 100th टर्म ऑफ सेकेंड एपी इक्वल टू, यहाँ A1 होगा और A2, A1 A2 हमने माना है, तो A2 प्लस 99D। अब और भी हम लोग देखते हैं, 1000th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इक्वल टू A1 प्लस 999D। और भी देखते हैं, 1000 टर्म ऑफ सेकेंड एपी इक्वल टू 80 प्लस 999D। तो ये हमारा अगर इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 4 है। ओके, अब दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from equation 1. So A plus 99D minus A1, A2 plus 99D, डिफरेंस इक्वल टू, ओके, यहां लिख दीजिए। सो दिस इज इक्वल टू A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99, देखो यहां D छूट गया। अब देखो 99D कट गया, सो A1 माइनस A2, एंड नाउ A1 माइनस A2 इक्वल टू 100, इट इज गिवन इक्वेशन 5। अब नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, what happened? So A1 plus 999D minus A2 प्लस 999D, यहाँ फिर डिफरेंस लिख दीजिए। सो A1 प्लस 999D minus A2 minus 999D again cancel, so A1 minus A2,
अब देखो a1 माइनस a2 यहाँ भी है, a1 माइनस a2 यहाँ भी है, सो हेंस और दिस इज इक्वल टू 100 फ्रॉम इक्वेशन 5. Hence the difference of 1000th term is also 100. तो देखो एक चीज यहां पर ध्यान में रखो, इससे ये क्लियर हो गया कि डिफरेंस ऑफ 1000th टर्म हो या 100th टर्म हो या फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म, डिफरेंस हमेशा इक्वल आएगा, सेम आएगा। अगर इस तरह का केस दिया हुआ हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब के लिए, लेकिन इस तरह के केस में क्या होगा, तो डिफरेंस हमेशा सेम, यानी 100 था 100th टर्म का, तो 1000th टर्म का भी वही आ गया, 10th टर्म का भी कोई पूछेगा वही होगा। अंडरस्टूड? तो आज के टारगेट में एक क्वेश्चन हमारा और रह गया है, तो अब उस क्वेश्चन की तरफ मूव करते। अब देखो मोबाइल में कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण अब आगे मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं नहीं बना सकता हूं, इसीलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।